کا چہرہ مجھ کو بنا دے تو ویسا، جیسا ہے میرے مسیحا کا چہرہ مجھ کو بنا دے تو ویسا، میری راہوں کو چھو دے تو، میری باتوں کو چھو دے تو، میری راہوں کو چھو دے تو، میری باتوں کو چھو دے تو، پاک روح مجھ کو بھی لے جا یسوع کے حضور، پاک روح مجھ کو بھی لے جا یسوع کے حضور، پاک روح پاک پاک روح، آمین آمین آمین۔ سو آئیے اج دے بچن واسطے ساڈے نال ساڈے بہت ہی رسپیکٹڈ پاسٹر شاہد مان جی نے، سو میں انہوں نے ریکویسٹ کروں گا کہ اج دے بچن واسطے پربھو دے داس واسطے جننے بھی جن جڑے انہاں واسطے اور جو نہیں جڑ سکے انہاں واسطے بھی اور ساری کمپلیٹ میٹنگ واسطے پرارتھنا کریں۔ ہاللویا، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت اور پرفضل دن کے لیے، نغموں کے لیے کہ جب خدا نے ایک دفعہ پھر ہم سب کو اپنے پاک قدموں میں آنے کا، اپنی حضوری میں جھکنے کا یہ فضل بخشا کہ ہم سب جو مسیح کا بدن ہے، جو اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور جو اس کے خون خریدا لوگ ہیں، اور اس کے بیش بہا قیمتی خون کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے، سو آئیں کیوں نہ ہم اس نجات کے لیے، اس فتح مندی کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ آج کے دن کے لیے، وقت کے لیے، لمحوں کے لیے خدا ان کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو خدا ان کی پاک حضوری میں جھکائیں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ فوراً ہی میں روح میں آ گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں، بہت بڑی بلندی ہے، اور بلندی کے اوپر ایک تخت ہے، اور تخت کے اوپر بڑا تخت نشین ہے، اور لاکھوں قدوس دن رات پکار پکار کر کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس، عزت تمجید اور تعریف کے لائق تو ہی خدا ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر ہر ایک قوم قبیلہ میں سے اپنے واسطے اپنے لوگوں کو خرید لیا۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں باپ آسمانی، تیری اس الہی برکت کے لیے، اس خوبصورت خداوند نعمت کے لیے خداوند کہ جب تو نے ہمیں اپنے فرزند ہونے کا فضل بخشا اور یہ توفیق بخشی کہ خداوند ہم ہر روز یک دل یک جان ہو کر خداوند تیرے حضور جھک سکیں، اور دیکھ خداوند پاک خدا تیرے بیٹے اور بیٹیاں خداوند ہر روز دور و نزدیک سے اکٹھا ہوتے ہیں تاکہ مل کر تیرے پاک نام کو بڑھا سکیں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس الہی فضل کے لیے، اس خوبصورت زوم پلیٹ فارم کے لیے، ہولی سینچری منسٹری کے لیے، اور تمام خوبصورت جانوں کے لیے خداوند جو خداوند فقط تیری محبت سے سرشار ہو کر خداوند جو تیری قربت میں رہنے کے لیے خداوند ہر روز اکٹھا ہوتے ہیں تاکہ مل کر تیرے پاک نام کو بڑھا سکے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خداوند کہ آج تیرے روح القدس نے جنبش کی ہے، تو نے ایک ایک جان کو چھو لیا خداوند، اور اب تو اپنے کلام کو نازل کرنے کو خداوند۔ بے شک خداوند تیرا کلام جو دو دھاری تلوار ہے، جو بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے، اور خداوند تیرا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ میں پورے ایمان سے خداوند آج کے پیغمبر کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک اپنے پیغمبر کو چھونا، برکت دینا، تک کہ جب تک تیرا پیغمبر بولے وہ نہیں بلکہ روح القدس اس میں سے ہو کر بولے، اور تیرے کلام کی مؤثر اور شیریں باتیں خداوند ہمارے دل کے اندر پیوست ہو جائیں، اور خداوند ہم تیرے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے خداوند
बहुत सारी जिंदगी को जीतने का सबब ठहरे। खुदा हमारे साथ होना, बड़ी मदद, बड़ी रहनुमाई करना, ये सब कुछ मांगा और पाया तेरे कदूस नाम में, आमीन। आमेन आमेन आमेन। सो अपने पास्टर इरफान जी दा बरकत जिंदा जलाली उत्तम और कादिर नाम में अब सबको सलाम, अब सबों की सलामती हो। मैं उम्मीद वास्ती करता हूं कि आप सब मसीह में मसरूर होंगे और खुदावंद आप सबों पर अपनी शफकत को जारी और सारी रखे हुए है। आज खुदा के कलाम में जिस मतन को मैं आप सबों के लिए बयान करने को हूं, मैं उम्मीद वासी करता हूं कि आज का कलाम हम सबों की रूहानी अफजाइश, तरक्की और बिलखसूस ईमान में मजबूती का बाइस ठहरेगा। आए खुदा के कलाम से हम देखेंगे पौलुस रसूल का खत कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम। पौलुस रसूल का दूसरा खत कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम, उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारका को खुदा के कलाम से देखेंगे। बस आए अजीजो, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। कलाम पाक का पढ़ा, सुना, समझा और बिलखसूस कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत, तसल्ली, नजात का बाइस ठहरे। आमीन। इससे पेशतर कि इस हवाला को आप लोगों के दरमियान बयान करूं, उसकी वजाहत करूं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूंगा कुरिन्थुस की कलीसिया और वहां के इलाका के बारे में। कुरिन्थुस में पौलुस ने कलीसिया कायम की। उस कलीसिया में मसीही जिंदगी और ईमान के बारे में कुछ मसाइल उठ खड़े हुए थे और कुरिन्थुस यूनान का बैनुल कौमी शहर था और ना सिर्फ वो यूनान का बैनुल कौमी शहर बल्कि रोम के सूबा अखिया का सदर मुकाम भी था और ये शहर माली, तजारती, गहमा गहमी का एक खूबसूरत शाहकार था और यहाँ काबिले फख्र जो इनकी तहजीब और तमद्दन, सकाफत और तरह तरह के मज़ाहब भी यहाँ थे। मगर यहाँ जिस बात को मद्देनजर रखते हुए पौलुस ने कलीसिया कायम की, वो कुरिन्थुस के लोगों की बदकिरदारी, बदकारियों में फंसा होना, बद अखलाकी, मखलूत शादियां, हरामकारियां और कलीसिया में तफरकेबाजी और इस तरह की बहुत सारी वजूहात। और दूसरे खत के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उसके बारे में मैं बताता चलूं कि पौलुस ने ये खत इसीलिए लिखा कि यहाँ बहुत से झूठे रसूल उठ खड़े हुए थे जो ना सिर्फ पौलुस रसूल पर तनकीद करते थे बल्कि वो उसको झूठा भी साबित करने के लिए आयरोज प्रोपोगंडेस क्रिएट करते थे। मेरे अजीजों, आज
पौलुस रसूल के करंथुस के नाम लिखे गए दूसरे खत के 7वें बाब की पहली आयत मुबारक को जब व्यर्थ किया गया तो उसमें एक लफ्ज आया, रूहानी और जिस्मानी आलूदगी। आज उस पर मैं बात करना चाहूंगा। और करंथुस की कलीसिया रूहानी और जिस्मानी आलूदगी में घिरी हुई थी। उनका मालो मता, उनकी ऐशो इशरत, उनकी दौलत उनको खुदा की हजूरी से दूर रखे हुए थी। और वो लोग ना सिर्फ खुदा से दूर थे बल्कि बदियां, गुनाह उनमें वो जकड़े हुए थे। और अगर इसी आयत मुबारका में रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से पाक करें, तकदीस करें, इसके लिए जब मैं रहनुमाई ले रहा था तो यूनानी लफ्ज हेगियोस मेरी नजर के सामने से गुजरा और उस लफ्ज में इस मतन को समझने में मुझे रसाई और आसानी हुई। हेगियोस यूनानी जुबान में जो लफ्ज तकदीस के लिए, पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है अलग कर लेना, अलहदा कर लेना। और जिस हवाला को आप सबों के लिए पढ़ा गया उसकी कड़ी सिर्फ 7वें बाब में ही नहीं मिलती बल्कि 6ठे बाब की अगर 14 आयत मुबारका को पढ़े तो उसमें खूबसूरती के साथ पौलुस का बयान करने का मतलब भी समझ आता है कि हमें किस तरह से जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से खुद को पाक करना है। दूसरा करंथियों उसके 6ठे बाब और उसकी 14वीं आयत मुबारका में लिखा है, बड़े ईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मेरे अजीजों, जब हमने मसीह यीशु को पहन लिया, जब मसीह यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया, तो जरूर है कि हमारा ईमान हमें इस बात पर उभारे कि बर्रे के लहू से हमारे सारे पाप, सारे गुनाह धुल गए। और पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से वहां के बिलीवर्स को, वहां के ईमानदारों को बड़ी खूबसूरती के साथ ना सिर्फ इकट्ठा करता है बल्कि उनके दरमियान इस बात का चर्चा भी करता है। वो बयान करता है, पास आए अजीजों, चौके हमसे ऐसे वादे किए गए। और याद रखिए, हम अब्राहम की नस्ल से हैं और हमसे जो वादे किए गए हैं वो जो अब्राहम की नस्ल में से पूरे हुए हैं वो ऐसे ही वादे हैं। और अगर बाइबल मुकद्दस पर निगाह करें तो खुदा के जो सारे वादे हैं वो खुदा ने पूरे किए हैं। कलामे पाक बयान करता है कि खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले। मेरे अजीजों, खुदा की सिफ्त मुबारक है कि वो जुए और बंधन तो तोड़ सकता है, लेकिन
खुदावन सिफ्त है कि वो ईमानदारों से किए हुए वादे नहीं तोड़ता, बल्कि जो उनके मुखालिफ बंधन या जुए होते हैं वो तोड़ता है। हालेलुया। अगर करंथुस के ही खत पर निगाह करें तो करंथुस के खत में, दूसरे खत में ही हमें मिलता है खुदा के वादों के मुतल्लिक पौलुस रसूल का खूबसूरत बयान। और पौलुस रसूल एक खुदा का एलची, खुदा का रसूल, खुदा का ममसू, जो हमें इस बात पर उजागर करता है कि खुदा के जो वादे हैं वो हमारे लिए हाँ के साथ हैं। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल करंथियुस की कलीसिया के दूसरे खत उसके पहले बाब और उसकी 20वीं आयत मुबारका में बयान करता है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिए से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। इस आयत मुबारका को मैं 3 हिस्सों में बयान करना चाहूंगा। ईमानदार की सारी जिंदगी का उसके हालात उसके मुखालिफ ही क्यों ना हो, का उसकी कश्ती उसके हालात की मौजों में, तूफानों में क्यों ना घिरी हो, उसका ईमान, उसका भरोसा, उसका तवक्कल अपने खुदा के वादों पर होता है, क्योंकि वो इस बात को समझता, इस बात को जानता है कि उसके खुदा के उसके साथ किए हुए, उसके ईमानदार लोगों के साथ किए हुए सारे वादे हाँ के साथ। और जब हम कलाम पाक में आगे बढ़ते हैं और पाकीज़गी हम अपनी निगाहें मरकूज करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात मुबारका हमें इस बात की तरफ सोचने के लिए राग़ब करती है, हमें इस बात की तरफ लेकर जाती है कि उसमें जो हम उम्मीद रखते हैं, उस उम्मीद के वसीला से हम भी पाक बने, पाकीज़ा बने। और जिस तरह मैंने वर्ड बताया है, गियोस, ग्रीक वर्ड तकदीस के लिए, पाकीज़गी के लिए, पाक करने के लिए, जिस तरह अंधेरा और रोशनी इनमें फर्क है, इसी तरह पाकीज़ा शख्स, ईमानदार शख्स दूसरों से जुदा होना चाहिए। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 30 आयत मुबारका में कुछ यूं लिखा है, और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। आमीन। खुदा से उम्मीद हमें इस तौर से है कि वो पाकीज़ा है, और जरूर है कि हम भी पाकीज़ा बने, क्योंकि खुदा की मर्जी, खुदा की मंशा, खुदा की रजा ये है कि हम भी पाक बने। और अगर गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू को देखें, उसके 5वें बाब में मुबारकबादियों में से एक मुबारकबाद है, जिसमें बयान किया गया है कि जो पाक दिल हैं वो खुदा को देखेंगे। आज ईमानदार खुदा के वादों पर भरोसा नहीं करता, जिसकी वजह से वो ईमान की कुश्ती हारता है। ना सिर्फ मैंने बहुत सारे ऐसे ईमानदार देखे हैं जिन्होंने इस निजात की खुशखबरी को कबूल किया, खुशी खुशी से खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियां दी, लेकिन चंद महीने, चंद
दिन, चंद साल मसीह के साथ चले और उसके बाद उनका हाल पहले से भी बुरा हाल हुआ। क्यों? क्योंकि वो खुदा के वादों में नहीं खड़े रहे। मेरे अजीज बहन भाइयों, ईमानदारों, मसीह में होते हुए आपके मेरे हालात खा कैसे ही क्यों ना हो, पहली चीज हमें ईमान में मजबूत रहना है और हमेशा खुदा के वादों पर भरोसा रखना है। और इसके साथ साथ एक और चीज जिसका मैं आप लोगों के साथ बयान करना चाहूंगा, इसकी 7वीं आयत मुबारक में ही जिसका बयान किया गया है। पहली चीज ये है कि हमें हमारे साथ जो वादे किए गए वो हां के साथ हैं, और हम इंसान होने के नाते एक दूसरे के साथ अहदो पैमान जब करते हैं, शायद हम अहदो पैमान से मुनकिर हो सकते हैं, शायद हम अपने वादा को तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा ताकत और सच्चाई से मलबूस खुदा है। वो वादों का सच्चा खुदा है और अपने ईमानदारों के साथ किए हुए वादे वो हर एक हाल में पूरे करने की कुदरत रखता है। ईमानदारों, मुझे और आपको खुदा के वादों पर भरोसा करना है। दूसरी चीज, अपने अंदर तलाश करना है हर एक तरह की रूहानी और जिस्मानी आलूदगी। अगर हम गुनाहों पर देखें तो गिलतियों के खत उसके 5वें बाब उसकी 19 से 21 आयत मुबारक, इन आयात में गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त खुदा के बंदा ने बयान की है। और जब हम देखते हैं इन गुनाहों में हम जिस्म से बहुत से गुनाह सरजद हमसे हो जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा इन गुनाहों की इस फहरिस्त को, और ये मैं बताता चलूं, ये जिस्म के गुनाह हैं। गिलतियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 19 आयत मुबारक में लिखा है, 19 से 21 आयात। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगज, नशाबाजी, नाचरंग और उनकी मानिद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूं, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल ना वारिस ना होंगे। मेरे अजीजों, गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त पौलुस ने गिलतियों के खत में जिसका आपके साथ बयान किया गया, ये गुनाह अगर ईमानदार की जिंदगी में है तो वो खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। और वापस उसी हवाला पर चलेंगे, वहां पौलुस ने एक और खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया है, रूहानी आलूदगी। जिस्मानी आलूदगी यानी कि जिस्म से सरजद होने वाले गुनाह, और रूहानी आलूदगी ऐसे गुनाह जिनको जिस्म सरजद नहीं करता, लेकिन उनके सरजद होने से आपका जिस्म इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन फिर भी उन गुनाहों की वजह से आपकी रूह गुनाह आलूदा हो जाती है। जी, वो गुनाह आपकी ख्यालों, आपकी सोचों में
जन्म लेते हैं, आपकी सोचों, आपके ख्यालों से वो गुनाह पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को गंदी निगाह से देख लिया या सोच ही लिया या ख्याल में अपने गंदी जहनियत से किसी के बारे में गंदा सोच लिया, तो बेशक मेरा जिस्म उस गुनाह में इंदौब नहीं हुआ, लेकिन रूहानी तौर पर मेरी रूह आलूदा उस गुनाह के वसीला से हो गई। और पौलुस ऐसे ही गुनाहों के बारे में ईमानदारों को अलर्ट करता है। और याद रखिए, जहां पस या चौंके ऐसे अल्फाज बाइबल मुकद्दस में आए, वहां समथिंग अलर्ट, होशियार, मुहतात रहने के लिए कुछ बयान किया जा रहा होता है। और पौलुस इसी बात का बयान कर रहा है। ईमानदार के साथ जो वादे हैं, उसमें ईमानदार को रहना है, खुदा के किए हुए वादों में उसे रहना है, खुदा के जो ईमानदारों के साथ वादे हैं। और दूसरी जो चीज वो बता रहा है कि ईमानदार को लिखा है कि हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करना है खुद को। और तीसरी अहम बात, शायद ईमानदार जो दावा करता है कि मैं ईमानदार हूं, शायद उसकी जिंदगी में ये बात ना होने के बराबर हो। लिखा है, और खुदा के खौफ के साथ कमाल, पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। ईमानदार की रूहानी जिंदगी का आगाज खुदा के खौफ से शुरू होता है, और जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं निकलती, उसको चाहिए कि उसकी जिंदगी खुदा के खौफ में ही गुजरे। मेरे अजीजों, इस दुनिया में रहते हुए लोग इंसानों के खौफ को खुदा के खौफ पर फोकियत देते हैं, लेकिन ईमानदार का जिंदगी गुजारने का क्राइटेरिया, उसका लेवल दूसरे लोगों से अलग है। आज का पैगाम हर नए ईमानदार के साथ साथ जो ईमानदार मसीह में जिंदगी गुजार रहा है, ईमान में मजबूत हो रहा है, हर उस ईमानदार के लिए है। और खुदा का कलाम बताता है, अमसाल की किताब में लिखा है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि जब मैंने इस हवाला को पढ़ा, तो खुदावंद ने मुझे अपने इस कलाम को दिया ताकि मैं अपने अजीजों, ओल्ड एंड न्यू बिलीवर्स, हर एक किस्म के ईमानदार के साथ इस कलाम का बयान करूं कि आए ईमानदारों, जिस तरह पौलुस करंथुस की कलीसिया, जो गुनाहों में, बदियों में घिरी हुई कलीसिया थी, उनको खत लिखकर उनको तंबी हदायत कर रहा है कि किस तरह से हमारे साथ जो वादे किए गए, हमने उन वादों में खड़े रहना है। किस तरह से अपने अंदर निगाह करनी है, किस तरह से खुद को दूसरों से जुदा कर लेना है पाकीज़गी में, किस तरह से हमने जिंदगी गुजारनी है कि हम जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से बच सकें।
जिस्म के गुनाह हम पर काबिज ना हो सके, गुनाह के वसीला से हमारी रूह आलूदा ना हो सके, और इसके साथ साथ दुनिया का खौफ हम पर इस कदर हावी ना हो कि हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारना छोड़ दें। आज मैं आप सब लोगों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि जिस तरह पौलुस ने करंथुस की कलीसिया तक खुदा का कलाम पहुंचाया, करंथुस की कलीसिया तक खुदा के इन अल्फाजों को पहुंचाया कि वो अपने अंदर इस बात के लिए खुद को तैयार करें कि खुदा के वादों में उन्हें हर हाल में खड़े रहना है, हर हाल में खुदा के वादों पर भरोसा करना है। आपने किसी इंसान के वादा पर भरोसा किया है, उसने तो दगा दे दी है, उसने तो आपको झूठ बोल दिया है, उसने आपके साथ किया हुआ अहदो पैमा तोड़ दिया है, लेकिन मेरा और आपका खुदा ऐसा खुदा नहीं है। अगर उसकी कुदरत आपने देखनी है तो गुज़श्ता दिन पाकिस्तान में बहुत ही बारिश जोरों शोर से हुई और कोसे कज़ा धनक एक मरतबा फिर खुदा के इंसान के साथ किया हुआ वादा हमें याद दिलाती है कि खुदा वादों का सच्चा खुदा है। और इसके साथ साथ ईमानदारों, मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, गुनाह जो गुलाम बना लेता है, गुनाह पर आप काबिज आए, गुनाह आप पर काबिज ना आए, बल्कि आप अपने अंदर से हर एक किस्म की जिस्मानी गुनाहों और रूहानी आलूदगी को दूर करें। और तीसरी और अहम चीज, जब आप खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारेंगे, खुदावंद यीशु मसीह को नजात दहिंदा कबूल करेंगे, उसका लहू आपकी जिंदगी में काम करेगा, उसके लहू के वसीला से आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, और खुदा पाकरू जो हमारी शिफायत आहें भर भर कर करता है, उसके वसीला से आप खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और दुनियावी खौफ पर आप फोकियत हासिल करते हुए खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हुए ईमान में और बढ़ते चले जाएंगे, और फिर आपकी पाकीज़गी का लेवल कमाल पाकीज़गी के लेवल जैसा होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह पाकीज़ा है, खुदा बाप चाहता है कि आप भी ऐसे ही पाक बने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो कामिल खुदा, कामिल इंसान, जिस पर कोई भी गुनाह साबित नहीं कर सका, खुदा आप और मुझ हम सबों से ऐसी ही जिंदगी चाहता है। और याद रखिए इस बात को, जब तक आप खुदा के वादों पर भरोसा हर हाल में, हर हालात में नहीं करेंगे, रूहानी और जिस्मानी आलूदगी को अपनी जिंदगियों से तरक नहीं करेंगे, और खुदा के खौफ में बढ़ते हुए कमाल पाकीज़गी तक नहीं पहुंचेंगे, तो मेरे अजीजों, खुदा की बादशाही के वारिस आप और मैं नहीं बन सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कलाम हम सबों के लिए बड़ी बरकत का, बड़ी तंबीह और हदायत का बायस ठहरा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कलाम हमें ईमान में मजबूत करेगा कि हम खुदा के वादों पर भरोसा करें, हर हाल में हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से खुद को पाक करें, और खुदा के खौफ में
अपनी आखिरी सांस तक जिंदगी गुजारें, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और याद रखिए, मैं और आप उस जिंदगी के ताज के लिए बनाए गए जो मेरा और आपका मुंतजिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कलाम सब ईमानदारों के लिए और बिलखसूस नए ईमानदारों के लिए बड़ी बरकत, तसल्ली, रहनुमाई और हदायत का बाइस ठहरेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन आमीन। सो मैं चाहूंगा कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਨੁਸਰਤ ਭੱਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। जी आपकी भी हो। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए कि हम किस तरह होली टेम्पल बन सकते हैं, क्योंकि खुदा का हमारे लिए इरादा यही है कि हम उसकी तरह होली बने, और हम तब तक होलीनेस में नहीं जा सकते जब तक हम अपनी जिस्मानी और रूहानी जो हमारे अंदर गंदगी है, जो फिल्थीनेस है, उससे हम पाक साफ ना हो। और खुदा के खौफ में जब चलते हैं, और बेशक रूह कुदूस हमें इन सारी चीजों से अवेयर करता है, लेकिन खुदावन का खौफ भी जो है वो भी हमें खुदावन के हमें खुदावन की होलीनेस की तरफ लेकर चलता है। तो आइए हम इस खूबसूरत कलाम के लिए दुआ करें जो हम खुदावन के बंदा के वसीला से हमने सुना, खुदावन के मुंह की आवाज। अब आप आसमानी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू मेहरबान बाप है, तू सच्चा है, अपने वादों में सच्चा और बरहक खुदावंद है, तू वफादार खुदावंद है जो अपने वादों को पूरा रखता है। तेरे वादे हमारे साथ हमेशा के लिए, तूने हम इंसानों से, अपने बच्चों से अपने वादे किए, किसी और से अपने वादे नहीं किए है खुदाम, क्योंकि हम तेरी कीमती जाने हैं बाप आसमानी। तेरा इसके लिए शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इतना ऊंचा दर्जा दिया है खुदाम अपने बेटे के वसीले से, कि हम तेरे बेटे और बेटियां ठहरे हैं खुदाम। बाप तेरी पाक मर्जी है कि हम तेरी तरह पाक और साफ हों, उसको होने के लिए हम तेरे खौफ में रहें और अपनी जिस्मानी और रूहानी आलूदगी को दूर करके वापस मानी हम होलीनेस में आए, जो जैसे कि तू होली है, क्योंकि ये तेरी पाक मर्जी है, क्योंकि तू चाहता है कि हम रूहानी बने, हम जलाली बने, जैसे कि तेरा प्यारा बेटा मसीह यीशु है जिसमें एक भी गुनाह नहीं पाया गया है खुदा। और वापस मानी तू ये भी जानता है कि हम गुनाह की हालत में पैदा हुए, इसलिए तूने वापस मानी अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया, उसको फॉरएवर हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए है खुदा, जो कि तेरे दाहिने हाथ बैठा है। उसके नाम के वसीले से हम पाक और साफ होते हैं, और उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और इस खूबसूरत कलाम के लिए जो हमने सुना, इसके लिए तेरा बहुत शुक्र करते हैं खुदाम। हमने इससे बरकत पाई, हम तो मिन्नत करते हैं खुदाम के जितनों ने इस कलाम को सुना और जितने भी इसको सुनेंगे इसके बाद यूट्यूब चैनल पर, वो भी इस कलाम से बरकत हासिल करें, ताकि आए खुदाम हम तेरी हमारी होलीनेस और हमारी राइचसनेस तेरी तरफ को मुड़े आए खुदाम, ताकि हम भी तेरी तरह राइचस हों आए खुदाम और तेरी तरह होली हूँ, क्योंकि तू चाहता है कि हम तेरे होली टेम्पल बने आए खुदाम। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे इस प्यार के लिए, तेरे इस प्लान के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए कि जो तूने अपने बच्चों के लिए करता है और किया है और करता रहेगा। और बाकी आए खुदाम, हम सब जानते हैं कि तू अपने वादों का सच्चा और बड़ा खुदावंद है, तू वफादार खुदावंद है, तू हमेशा अपने वादे पूरे करता है। जब तेरे बच्चे आए खुदा तेरी तरफ मुड़ते हैं और तेरी पाकीज़गी में आगे बढ़ते हैं। इस खूबसूरत कलाम के लिए हम सारे बहन भाइयों के लिए, जितने पार्टिसिपेंट ने हमें ज्वाइन के लिए, सबके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरा रहम और तेरा फजल मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। सो मैं चाहूंगा कि किसी भी जी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो सो प्लीज वो दसी जावे। जी जी, तो किसी की भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो सो दस सकता है। हाँ जी हालेलुया। मेरी है प्रेयर रिक्वेस्ट। मेरे ना नाखून सारे ना कच्चे पड़ गए। मैं ना काम पे जाती हूँ जी जी, तो काम करने से ना मेरे हाथों के नाखून जो कच्चे पड़ गए हैं
तो ऐसा हुआ कि एक उंगली का ना मांस मेरा कच्चा वो निकल गया, उसकी वजह से ना पानी पड़ गया मेरी उंगली में। कभी ऐसा हुआ नहीं है, मैं तो दुआ प्रार्थना में रहती हूँ, पर फिर भी आप मेरे लिए दुआ करें तो वो मेरी उंगली बिल्कुल ठीक हो जाए। कभी दर्द बहुत होती है मेरे को। जी 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 जरूर। तो और कोई किसी की है सो प्लीज बताएं। और मैं पास्टर फयाज जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो हमें सुन पा रहे हैं तो जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड और सीनियर पास्टर हैं पास्टर फयाज जी। आए हम अपने सिरों को खुदा की हुजूर झुकाएं, उसकी हुजूरी उसकी मौजूदगी को महसूस करें और दुआ करें सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, देख खुदावन हम तेरे हुजूर इकट्ठे हैं और खुदावन अपनी सारी दरखास्तों को रिक्वेस्ट को और तेरे हुजूर रखते हैं। खुदावन पाक खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं सारे लम्हात के लिए और खास तौर पर खुदावन आज जब तूने अपना जिंदा कलाम हमें बख्शा, हम उस कलाम की शुक्रगुजारी करते, तेरी आवाज को सुन पाए उसकी शुक्रगुजारी करते और तेरे खादम के लिए बरकत की दुआ करते। देख खुदावन तू पाक खुदा है और खुदावन तू हमारी रूहानी और जिस्मानी जरूरतों को पूरा भी करता है और हम तेरे आगे दरखास्त करते हैं कि तू ही है जो हमारी जिस्मानी और रूहानी आलूदगी को दूर कर सकता है। इसलिए कि अभी हमने पाक कलाम में सीखा कि तू अपने वादों का सच्चा और बरहक है और तेरे सारे वादे हाँ में है। देखना जितने लोग आए हैं आज मैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता खुदा। देख खुदा तू एक एक के ख्यालात को जानता है, एक एक के दिल को जानता है और पाक रूह जो है वो जुम्बश करता है और सारी चीजों को देखता है। इस कलाम के लिए हम तेरे नहायत शुक्रगुजार है। देख खुदा जबकि प्रेयर रिक्वेस्ट भी हम तेरे सामने रख रहे हैं, खुदा तू आसमान की बुलंदियों से खुदा हम पर नजर कर और तेरे चेहरे का नूर हम पर चमके और हमारी सारी जिस्मानी और रूहानी कमियों को दूर करे। देख सिस्टर पूनम के लिए जिसके उंगलियों के नाखूनों का इश्यू है, प्रॉब्लम है, यीशु नासरी देखता हूँ तुझे दूर नजदीक का खुदा है। देख बेशक हम एक दूसरे से दूर बैठे हैं लेकिन तेरा पाक रूह हर एक के नजदीक है, तेरा पाक रूह हर एक के साथ है, तेरा पाक रूह हर एक के सर पर मुंडलाता है। मैं तेरी बेटी पूनम को बाप बेटे रूल कुछ के नाम से बरकत की दुआ देता हूँ, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ और इसकी उंगलियों के लिए, नाखूनों के लिए और जो भी मांस में प्रॉब्लम है, पानी है, यीशु के नाम से हील हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हील हर जीसस क्राइस्ट हील हर, ताकि वो तेरे नाम की दुआ ठहरे और खुदा तेरे अंदर मजबूत जड़ को पकड़े पा खुदा। देख खुदा इसी तरह हम पास्टर इरफान अशरफ की बेटी जिसकी सालगिरह है उसके लिए भी हम खुदा दुआ करते हैं। तो उसको जैसे तूने जिंदगी का उसका साल बढ़ा रहा है खुदा वो तेरे पाक रूह में बढ़े, तेरी पहचान में बढ़े, तेरे जलाल में बढ़े और तुझसे बरकत पाए। मैं उनकी फैमिली के लिए और सारी फैमिली के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। पाक इसी तरह मैं सिस्टर नुसरत भट्टी के जो इन लॉज है, मम्मी डैडी हैं, खुदा मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। खुदा तू उनको संभाल, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और जितनी देर वे जमीन पर जिए खुदा ओ खुदा तेरा हाथ उन पर ठहरा रहे। मैं तेरा हाथ मांगता हूँ, हैंड ऑफ गॉड मांगता हूँ। खुदा तेरा हाथ उन पर ठहरा रहे यीशु नासरी और मजबूत अच्छी जिंदगी दे पा खुदा। ओ खुदा कोई भी अगर बीमारी है, कोविड-19 है, यीशु के नाम से जाता रहे, हील कर यीशु। मैं इस तरह मैं सिस्टर नसरीन अख्तर के लिए चेयरपर्सन होली सेंचुरी मिनिस्ट्री उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ, उनकी फैमिली के लिए, उनके बेटों के लिए, बहू के लिए और उनके सारे काम काज के लिए, उनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए। खुदा तो उनकी मिनिस्ट्री को उसकी हदों को यबीस की हदों की तरह बढ़ा। उसकी मिनिस्ट्री जो है उसकी नहीं बल्कि खुदा सारा तेरा काम है, हम सब उस टीम का हिस्सा हैं और खुदा दुनिया की इंतहा तक वो तेरी गवाह ठहरे पा खुदा। हम से हर एक जो खुदा तेरे खादम है उनको बड़ी खुदा बरकत, हिकमत और तनाई से मूर कर, ताकि खुदा ये तेरे कलाम को, तेरी खुशखबरी को
फैलाते चले जाएं और तेरे कलाम की अशायद करते चले जाएं खुदा। देखता हूं इस तरह मैं पास्टर शाहद बाम के लिए, उनकी फैमिली के लिए और बरकत की दुआ करता। जबकि कराची में बारिशों का सिलसिला है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है खुदा, में इस मौसम की सारी शिद्दत और तगयानी, सैलाब, फ्लड जो भी है खुदा तेरे हाथों में देता हूँ। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सैलाब तगयानी की वजह से भी परेशान हो रहे हैं और अभी बारिशें और ज्यादा हो रही हैं खुदा। इन सब पर खुदा हम तेरी मदद, तेरी कुमत को मांगते हैं खुदा। और जितने खातम आज हमारे दरमियान है, इनके खानदानों के लिए हम खुदा दुआ करते हैं खुदा। तो मैं अपने खानदान को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने आप को भी खुदा तेरे आगे झुकाता हूँ। तू अपना हाथ बढ़ाकर खुदा हम पर रहम करम फजल कर, और खुदा जो भी हमारी जिंदगी में इश्यूज आते हैं तो उनको सॉल्व करता रहता है। और आइंदा भी खुदा तेरे आगे रिक्वेस्ट मिन्नत करता हूँ, तेरे आगे झुकता हूँ कि तू संभालना। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परे तौले संभालती है, खुदा तू भी हमें अपने साए तले, अपने पाक रूह के साए तले ले ले। खुदा मैं रवि साहब के लिए, हमारे जो वर्शिपर हैं, खास बरकत को चाहता हूँ, तेरे खास हाथ को चाहता हूँ खुदा। तेरा हाथ रवि दीप पर ठहरे, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर, उनकी जो भी एप्लीकेशन उनके फीसर के आगे पड़ी है खुदा, मैं उसके लिए बाप बेटे रूह को उसकी बरकत चाहता हूँ खुदा। जल्द मामला को हल कर यीशु मसीह, हम तेरे आगे झुके हुए हैं खुदा। ब्रदर सानिया पालक के लिए, उनके लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी वाइफ के लिए खुदा तेरे हाथ को मांगता हूँ, तेरे माइटी हैंड को मांगता हूँ, तेरे जोर और कुव्वत को मांगता हूँ खुदा। उनकी जिंदगी में मौजा कर, और जितने लोग बीमार हैं उनको शिफा की जरूरत है, तेरी कुदरत, तेरे हाथ की जरूरत है, तू मौजे दिखला ताकि तेरे नाम के सच्चे गवाह ठहरे खुदा। देखता हूं जो किसी भी वजह से आज हमारे साथ नहीं आ सके, हम उनके लिए भी खुदा बरकत की दुआ करते हैं, उनको भी खुदा नेक्स्ट डे वेलकम करेंगे खुदा। और हम दुनिया के लिए अमन की दुआ करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए हिफाजत, सलामती, अमन की दुआ करते। और जहां जहां से जिन जिन मुल्कों से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ बैठे हैं, हम उन सब के लिए खुदा तेरे अमन और सलामती, उन मुल्कों के लिए, उन शहरों के लिए, उन गांवों देहातों के लिए तेरी बरकत को मांगते। और खास तौर पर मैं यूक्रेन और रूस की जो जंग है उसके लिए अमन की दुआ करता खुदा, और उस जहां पर अमन ठहरे, उसके वसीले से पूरी दुनिया पर अमन ठहरे खुदा। और इकानमी जो पूरी दुनिया में डिस्टर्ब है, हम उसके लिए भी खुदा तेरे हाथ को मारे, तू इकानमी को बहाल कर खुदा, और तू हमारे साथ हो खुदा। देखता हूँ जो कुछ हमारे दिलों में है तू जानता है, तू दिलों और गुर्दों की जानने वाला खुदा है, तो दूर से ख्यालात को जान लेता है खुदा। तू एक एक जो सोच, जो हमारी ख्वाहिश है, जितने बहन भाई हमारे साथ बैठे हैं उनके मंसूबों को यीशु के नाम से पूरा कर। और देख जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, अब पाकिस्तान में भी मैट्रिक, 9th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के एग्जाम दे रहे, मैं उन सब के लिए बरकत को मांगता हूँ, और उनकी स्टडी अच्छी हो, उनके एग्जाम्स अच्छे हों, उनके पेपर अच्छे हों, और उनके प्रैक्टिकल अच्छे हों, और जब रिजल्ट आए सारा इज्जत जलाल उन्हें जो है मेरे यीशु नाम को मिले खुदा। तू हम सब के साथ हो, और जो भी हमारी दरखास्तें हमारे लबों पर नहीं आ सकी तू उनको भी छू, तेरे पाकों का मस्सा चाहते हैं, तेरे पाकों का मस्सा चाहते हैं खुदा। और खुदा तेरे खून जो तूने फिदिया हमारा सलीब पर दिया, उसके वसीले से खुदा तू शिफा को जारी करता है। जितने बहन भाई बीमार हैं उनके लिए शिफा को जारी कर, जो बे औलाद बहन भाई हैं उनको औलाद जैसी बरकत दे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार जैसी बरकत दे, जिनके पास अपने घर नहीं किराए के मकानों में रहते हैं उनको अपने घर अता कर यीशु मसीह, अपने आसमान को खोल कर बरकत को जारी कर यीशु मसीह। और देखना इसी तरह देखना जिनकी शादियां ब्याह उनकी में रुकावट है खुदा, हम तेरे हाथ को मांगते हैं। माँ बाप परेशान है, माँ बाप रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उनको अच्छे रिश्ते मिले, अच्छे जीवन साथी मिले। ओ खुदा पाखुदा तू सब पर भी अपना रहम और अपना करम दिखला पाखुदा। ओ खुदा सुनासी एक बार फिर मैं बेला जोड़ों के लिए खास तौर पर दुआ करता हूँ, औलाद जैसी बरकत दे पाखुदा। और खास तौर पर ऐसे लोग जो किसी कैंसर ट्यूमर का शिकार है, विक्टिम है, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, हम उन सब के लिए भी दुआ करते हैं, उनके ऑपरेशन को कामयाब करना। किडनीज का ऑपरेशन हुआ है, किडनी रिमूव हुआ है, तो हील करना। एक जख्म जो है
खराब है, उस जख्म को एक स्टिच को हील करना जिसको नासी। मैं भाई ताहर के लिए तेरा हाथ मांगता हूँ। ओ दूसरे भाई के लिए जिसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होना है, मैं कहता हूँ तेरी कुव्वत को मांगता हूँ, तेरी मदद को मांगता हूँ। खुदा तू रहम कर, करम कर यीशु नासरी। और एक एक दरखास्त को आपने हुजूर कबूल फरमा। यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन। आमीन आमीन दुआ आमीन, करेंगे, आमीन। हमारे आमीन बाप हमारे आमीन। बाप तू जो आसमान वहाँ पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी तेरी से मर्जी आसमान से पर आसमान हो, पर होती है, जमीन पर इन भी पर हो। भी हो। हमारे रोज की रोटी आज क्या दे और जिसमें तू हमारे कज़म, तू हमारे कज़म माफ कर, आज़माइश में न डाल, में बल्कि न बुराई से पड़ने बचा के। के बादशाह आमीन। कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आमीन। हमें बरकत अता करें। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शाकत तमाम झुकी हुई जानों के साथ, और जितने लोग हमारे साथ ज़ूम मीटिंग में हैं, इनके खानदानों में एक एक फर्द के साथ, और खास तौर पर होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ, और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, और दुनिया के तमाम जो काहिन हैं उनके साथ, पास्टर्स हैं उनके साथ, और खुदा की कौम बनी इसराइल के साथ, खुदा के शहर यरूशलेम के साथ, अब से लेके अब्दुल-आबाद रहे। आमीन। आमीन, आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। आप सबको भी बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो। आमीन आमीन। तो आप रिकॉर्डिंग से बंद